Hi, good morning. I hope that you're doing good and keeping safe during this pandemic scenario. I'm Muktesh, and today I'm recording this demo video. I'll be assuming that there are some students sitting in front of me, and I'm teaching them, or maybe I'm taking a class online. Before we get started, I would like to introduce myself. I'm Muktesh, I'm from Ajmer, Rajasthan. I've been teaching English for the last 17 years. I did my graduation in 2003, and ever since I did my graduation, I've been teaching English. I'm a TEFL and TESOL certified English trainer. TEFL stands for Teaching English as a Foreign Language, and TESOL stands for Teaching English to the Students of Other Languages. I'm a National Geographic certified educator as well, and currently I'm pursuing my International Advanced Diploma in TEFL, that is specialized in Young Learners and Business English. So, without wasting any time, let's get started. I'm assuming that there are some students in this class and I'm taking the class. I'll start by entering the classroom, or I'll start by starting the meeting as virtual conference. So let's get started. Okay, good morning everybody. How are you all? Well, I'm pretty good. Thank you so much. And I hope the same for you. Okay, so how has your day been so far? That's great. That's pretty nice. Okay, nice. Okay, so today we're going to talk about a very interesting topic of grammar, and the topic is active voice and passive voice. You know, generally many people get confused about this active and passive because since the childhood they've been taught with some rules and regulations, and every time those rules and regulations don't fit as far as actives and passives are concerned. So I'm going to talk about my innovative teaching method that I generally use to take the opportunity to teach the actives and passive to the students. And there is going to be one formula that I'm going to give you, and that one formula is going to clear all your doubts. Rather, I should say 90% of the actives can be transformed into the passive using this simple or single formula. Okay, but before we proceed further, I would like to know from you people, what do you understand by active and what do you understand by the word passive? Okay, nice. Okay, correct. Okay, in this you mean to say the subject turns into the object, it comes first like this. You are talking about the formula, right? That's pretty good. Appreciate it. But I did not ask you about the active and the passive voice. I just asked you what is the meaning of active and what is the meaning of passive. The active means sakriya and passive means nishkriya. सक्रिय मीन्स यू ऑल नो व्हाट डज इट मीन बाय सक्रिय. किसी काम के होने में आपका सक्रिय रूप से योगदान जब होता है तो दैट इज एक्टिव, और जब किसी काम के होने में निष्क्रिय हो जाते हैं आप तो वो बन जाता है आपका पैसिव. ठीक है. पैसिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पैसिव सिचुएशंस भी होती हैं, पैसिव लोग भी होते हैं. पैसिव सिचुएशंस कैसे होती हैं? मान लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने देखा होगा बहुत बार बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है उस व्यक्ति को देखने के लिए जिसको चोट लगी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं हेल्प करने के लिए. तो जो है जिसने जिसने हेल्प की या जो हेल्प करने के लिए आगे आया वो क्या हो गया? एक्टिव. समाज में रहकर वो एक्टिव है. और जो लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, तमाशबीन हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पैसिव ऑन लुकर्स. मैं चाहता हूँ आप लोग इस वर्ड को रिपीट करिए, नया वर्ड है पैसिव ऑन लुकर्स. तो जो लोग तमाशबीन हैं, देख रहे हैं, पैसिव ऑन लुकर्स हैं, वो लोग समाज का पैसिव हिस्सा हो गए. समाज में हम रहते हैं तो वी नीड टू बी एक्टिव इन द सोसाइटी, बट अनफॉर्चुनेटली समाज में रहते हुए हम सब लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं. तो हम सब लोग समाज में रहते हुए भी कैसे बन जाते हैं? पैसिव. पैसिव और भी चीज़ें होती हैं. एक बहुत लाइक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लोग स्मोकिंग करते हैं. तो स्मोकिंग में ही होती है एक्टिव स्मोकिंग और होती है पैसिव स्मोकिंग. एक्टिव स्मोकिंग मतलब यू हैव द सिगरेट एंड यू आर स्मोकिंग इट योरसेल्फ, आप खुद सिगरेट को पी रहे हैं. एंड पैसिव स्मोकिंग होती है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और मैं उसी रूम में बैठा हूँ तो वो धुआं मैं भी किसी न किसी रूप में ले रहा हूँ, तो मैं भी उस धुएं को ले रहा हूँ, लेकिन एक्टिव रूप में नहीं ले रहा, सक्रिय रूप से नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी ले रहा हूँ, ना चाहते हुए भी ले रहा हूँ. तो मैं उस काम को कर रहा हूँ जो काम मैं नहीं करना चाहता, वो है पैसिव स्मोकिंग. एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये प्रूव किया है कि 43% पीपल हु सफ़र फ्रॉम द लंग कैंसर they have never smoked, and that's why they have declared that 16%, yeah, I should correct myself, they have also declared that passive smoking is 16 times more deadlier than the active smoking. This is 16 times more fatal than the active smoking.
So first of all, there is a message for you people that never try to be a part of passive smoking. Active तो करना ही नहीं है, and try your best not to be a part of passive smoking as well. That's why the Indian government has banned the smoking at the public places, because the people who want to smoke, they can go ahead, they can smoke, but at least they should not play with the health of the other people. That's why at the public places you cannot smoke. Okay, so active और passive situations भी होती हैं, एक्टिव और पैसिव लोग भी होते हैं, और एक्टिव और पैसिव सिचुएशंस और लोग होने के साथ साथ इसके सेंटेंसेस भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोशिश करते हैं एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस को समझने की, और सेंटेंस को समझ के उस स्ट्रक्चर को समझने की, जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे मैक्सिमम आपके एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आई हैड टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, सो आई विल नॉट बी टेकिंग टू लॉन्ग फॉर दैट। लेकिन जब हम किसी लेसन को सीखते हैं, किसी लेसन के ऊपर बात करते हैं, किसी लेसन को प्लान करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसके साथ में वोकैबुलरीज को एसोसिएट करें, बिकॉज वोकैबुलरीज डेफिनेटली इंप्रूव द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज, राइट। तो जब भी एक्टिव और पैसिव की बात की जाती है तो जनरली हम लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमको बचपन से डराया गया है, हमको बताया गया एक्टिव पैसिव बहुत मुश्किल होते हैं, इन पे कमांड कर लो तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी। बट क्या होता है, जो चीज़ बचपन से आपके मन में बिठा दी गई है एक डर के रूप में, तो हम लोग हमेशा उस चीज़ को लेकर डरते हैं। और एक डर जो आपके मन में बचपन से बैठा हुआ है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये आपके लिए हवा बन गया है। और इस हवे को, एक डर जो आपके मन में है ना चाहते हुए भी है, उस हवे को इंग्लिश में बोलते हैं बग बेयर। तो अगर आप कहना चाहते हैं भाई एक्टिव पैसिव सुन के मुझे तो पसीना आ जाता है, तो बोल सकते हैं इट्स अ बग बेयर टू बी। इसके मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा, शायद आपके साथ भी हुआ हो, कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल बिल्कुल फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती उनको, लेकिन जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही उनके मन में एक हवा बैठ जाता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अरे बाबा रे, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम्स क्या है उनके लिए, हवा है। तो एग्ज़ाम्स आर बग बेयर टू दैम। मेरे पापा मेरे लिए बग बेयर हैं। मेरे पापा का नाम सुनते ही मुझे सांप सूंघ जाता है, आई फील माई टंग टाइड। मैं अपने रूम में जाके बैठ जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, घर के बाहर नहीं आता, बिकॉज माई फादर इज़ अ बग बेयर टू मी। बचपन में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो बच्चों को डराते हैं हम लोग कि ओ खाना खा ले, बाबा आ जाएगा, काला बाबा आ जाएगा, खाना खा लो। बच्चा बेचारा डर के खाना खा लेता है। फिर बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो कहते हैं उस कमरे में मत जा, काला बाबा बैठा है, ये मत कर, काला बाबा देख लेगा। तो उस बच्चे के मन में बचपन से आपने उस काला बाबा का डर बिठा दिया। अब जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो आप उससे कहते हो कि भैया मैंने कपड़े धो के छत पे सुखा के आया हूँ, या आपकी मम्मी बोलती है मैं कपड़े धो के छत पे सुखा के आई हूँ, कपड़े लेके आ जा। बच्चा बोलता है नहीं मम्मा काला बाबा है। तो आप क्या बोलते हो, अरे कोई काला काला बाबा नहीं है, जा लेके आ चुपचाप। बच्चा कन्फ्यूज होता है कि मम्मा बचपन में तो आपने डराया, अब कह रहे हो कि काला बाबा नहीं है। तो ये काला बाबा का जो डर बैठ जाता है बच्चों के मन में, इसको भी आप लोग कहते हैं बग बेयर। तो एक से ऐसे ये जो एक्टिव पैसिव है, इसका भी बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है, इस डर को भी हम लोग कह सकते हैं बग बेयर, और लोगों को कन्फ्यूज भी करता है। तो एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूज़ करे वो हो जाती है कन्फ्यूजिंग, और एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूज से भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दे वो हो जाती है माइंड बॉगलिंग, जो दिमाग घुमा दे आपका कि भाई साहब ये हो कैसे गया। तो ये एक्टिव पैसिव बहुत से बच्चों के लिए माइंड बॉगलिंग होते हैं, बल्कि मैं एक्टिव पैसिव नहीं कहूँगा, ग्रामर के मोस्टली स्ट्रक्चर्स बहुत से बच्चों के लिए माइंड बॉगलिंग होते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड से उन बच्चों की पूरी हेल्प कर पाऊँ, जिन जिन को इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, या इंग्लिश लिखने में, एग्जाम्स देने में समस्या आती है। एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 17 years एंड आई गेस आई हैव डन वेल। So now let's get to the topic. The structure what I'm giving you, this structure will it will be able to help you convert your actives into passive 90%। ठीक है, 3 जगह ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। सबसे पहली जगह काम नहीं करेगा जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग, उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। दूसरा सिंपल पास्ट में नहीं लगेगा। तीसरा ऑर्डरेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगेगा। इसके अलावा हर जगह आप एक्टिव से पैसिव को इसका इस्तेमाल करते बना सकते हैं। एंड द स्ट्रक्चर इज पैसिव सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड, आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। हर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है डेफिनेटली, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब जो मैंने स्ट्रक्चर बोला, अगर आप चाहें तो इसको कहीं लिख सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। वैसे तो whenever I teach this active passive, I teach it in a storytelling method, so it becomes very interesting, but because of the shortage of time, I'm not telling you the story, and with the story there are so many words and vocabularies that definitely appear, and that is definitely beneficial. अगर मैंने एक सेंटेंस बोला हिंदी में कि मम्मी खाना बना रही हैं, तो मम्मी खाना बना रही हैं, इसमें आपको काम करने वाला व्यक्ति दिख गया, कौन है, मम्मी, वो काम कर रही हैं। तो जहाँ आपको काम करने वाला व्यक्ति दिख जाए वो हो जाता है एक्टिव, और जहाँ आपको काम करने वाला व्यक्ति नहीं दिखता वो हो जाता है आपका पैसिव।
जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले बोलेंगे मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, काम जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इज़ लगाना पड़ता है। मम्मी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं, और जहाँ पे काम जारी होता है डेफिनेटली आपको वर्ब में आईएनजी भी लगाना पड़ता है। तो मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, और स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ आप जानते हैं, हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर मुझे इसका पैसिव बदलना है, मम्मी खाना बना रही हैं, तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर था वो था पैसिव सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला था आपका पैसिव सब्जेक्ट। तो पैसिव सब्जेक्ट इसमें क्या है, मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, मम्मी तो नहीं हो सकता, इज़ भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयर आपका काम करना है, यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट हो गया आपका फूड। तो सबसे पहले ले आएंगे पैसिव सब्जेक्ट को हमारे रूल के हिसाब से, द फूड, सबसे पहले बोलेंगे द फूड। अब क्योंकि काम जारी है और फूड फिर से सिंगुलर है तो इज़, फिर लगाएंगे आप लोग बी, क्योंकि बी हमारे रूल में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म यानी प्रिपेयर्ड। बट कहीं कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि जब काम जारी होता है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बना रहे हैं, तो आपका जो इसका पैसिव बनेगा उसमें भी आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो द फूड इसमें आईएनजी नहीं लग सकता, इज इसमें तो लग नहीं सकता, प्रिपेयर्ड ये तो ऑलरेडी था थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम आईएनजी लगा देंगे बी के अंदर, तो बन जाएगा द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अच्छा, इसी को मैं फटाफट से ट्रांसफॉर्म करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अगर मैंने आपसे कहा माई मॉम हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, माई मॉम हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। इसको बदलना है उसी रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले फूड, ये तो पैसिव सब्जेक्ट हमेशा रहेगा, द फूड बाहर आ जाएगा, द फूड। तो फूड के बाद है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए हैज़ और हैव में से कुछ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा हैज़, क्योंकि आप सिंगुलर की बात करें, द फूड हैज़, बी तो आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी प्रिपेयर्ड, तो द फूड हैज़ बी प्रिपेयर्ड। लेकिन वहाँ पे आपने इस देखकर आईएनजी लगाया था क्योंकि काम जारी है, तो यहाँ पे हम लोग हैज़ या हैव देखकर थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म एक तो लगी हुई ऑलरेडी, उसमें तो बदलाव नहीं हो सकता प्रिपेयर्ड, तो बी में लगा देंगे, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो पूरा बन जाएगा द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। और यहाँ फूड की जगह अगर आप बोल देते कि पाइपलाइंस बिछ रही हैं, तो पाइपलाइंस आर बीइंग लेड, यहाँ पे पाइपलाइंस के साथ आपने आर लगा दिया, वहाँ पे आपने फूड के साथ इज लगाया था। यहीं पे अगर आपने कहा द पाइपलाइंस हैव बीन लेड, तो पाइपलाइंस बहुत सारी हो गई, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा। और इसी का अगर बदलेंगे आप, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो बन जाएगा द पाइपलाइंस हैव बीन लेड, द पाइपलाइंस आर बीइंग लेड और द पाइपलाइंस हैव बीन लेड। And with this structure you can turn maximum actives into passive, trust me. And I hope that you like the video. Take care, good night, have a good day, and Jai Hind, bye.